Okay. So now you have the third plane, the third physiographic region, which is coastal plain of India. तो यहाँ पे if you see, again it is divided into two parts. ये वाला part जो होता है, that is known as Western coastal plains. Why? Because it lies towards the west of India. And then you had this part, which is the Eastern coastal plain. The one in yellow is Western, and the one in ochre color is basically the Eastern coastal plain. See, India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 kilometers. It lies towards the west and eastern part of Peninsula. कि क्या बताया हमारी coastline कितनी है? We extend almost up to 7,500 kilometers. तो वो कहाँ पे lie करती है? ये जो Peninsular region है यहाँ पे उसके east और west में lie करती है. First point clear है सबको? Okay. The west coast borders the Arabian Sea. It is by and large a rocky coast. At places, spurs क्या होता है बच्चा? It is small mountain-like structure. It is developed. At places, spurs off from the Western Ghats have extended right up to the coast. Its width is also less. यहाँ पे क्या बोला है देखो कि Western coast borders by Arabian Sea के यहाँ पे Western coast है, यहाँ पे if you see यहाँ पे you have Arabian Sea, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि Western coast का border कहाँ पे? It is with Arabian Sea. अभी यहाँ पे क्या बताया? At place spurs are developed. Spurs मतलब क्या? Small mountain like structure होता है, वो developed हो जाता है. If you see, एक मिनट मैं आपको पिक्चर बताती हूँ. So it would be easy for you. ये देखो. अरे यार एक मिनट. ये देखो, ये ऐसे बीच में छोटे छोटे माउंटेन रीजन्स फॉर्म हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पर्स. स्मॉल माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर के रिवर फ्लोइंग के बीच में ऐसे स्मॉल माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, तो दैट इज नोन एज स्पर्स. तो यहाँ पे क्या बोला बताया गया है कि जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है उसमें स्पर्स डेवलप हो गए हैं, एंड इसके वजह से उसकी विड्थ भी क्या है? लेस है. इफ यू सी यहाँ पे देखो, कंपेयर टू द ईस्ट, ईस्ट का पार्ट ज्यादा थिक है और वेस्ट कैसा एकदम थिन है. तो यहाँ पे वही समझा सबको, वेस्ट कैसे एकदम पतला सा है, बाकी ईस्ट में इफ यू सी इट इज अ बिट थिक. आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes, miss. तो यहाँ पे वही बताया Yes, कि miss. इट्स विथ इज ऑल्सो लेस, कि यहाँ पे इसकी विथ कम है कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट. Rivers originating from the Western Ghats are short and swift, and hence they form estuaries and not deltas. के deltas वो land like structure form नहीं होता है, but estuaries form हो जाती है. क्यों? Because यहाँ के जो river flowing region है, since ये एकदम thin है, इसका width भी thin है, तो यहाँ पे you have rivers जिनकी flow एकदम short है. See, you have rivers originating from Western Ghats. यहाँ से जो rivers originate करती है, they are very short and swift, and hence they form estuaries and not delta. के delta land like structure form नहीं होती है, estuaries एकदम ऐसे छोटी river flowing river flow developed होती है. Now we will see the eastern coast. बच्चा, eastern coast मतलब ये वाला part. तो यहाँ पे हम लोग ने देखा इसका एक्सटेंशन अरेबियन सी था, तो इसका एक्सटेंशन क्या आएगा? यहाँ पे क्या होता है आपका? Which river body you have? यहाँ पे you have Arabian Sea. Which one is over here towards the west, towards the east? मैप आना चाहिए. इतना इतना तो ये सिंपल रीजन है ना. अरेबियन, yeah, you have Bay of Bengal ना, यहाँ पे you have Arabian Sea. Towards the west you have Arabian Sea, towards the east you have Bay of Bengal. तो वही पार्ट आपका सेकंड आ जाएगा. यहाँ पे हम लोग ने लिखा the western coast borders Arabian Sea, यहाँ पे आ जाएगा the eastern coast borders Bay of Bengal. फिर ये क्या है? It is formed as a result of depositional works of rivers. देखा हम लोग ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ही सुंदरबन बना था ना,
ये वाले पार्ट में सुंदरबन डेवलप्ड हुआ था। वाई? बिकॉज यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है। यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे इतने रिवर्स नहीं है, इसीलिए यहाँ के जो रिवर्स है वो कैसे होते हैं, एकदम शॉर्ट एंड स्टीप होते हैं। बट यहाँ पे इफ यू सी देर आर सो मेनी रिवर्स विच आर फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्टर्न डायरेक्शन। एंड यहाँ पे इसीलिए बताया गया है दैट इट हैज फॉर्म बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ रिवर। के जो पूरा ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर है, दैट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ river. Also, if you see many east flowing rivers using from the western and eastern Ghats meet this coast. तो यहाँ पे if you see बहुत सारे east flowing rivers जो है यहाँ पे, ये वाले जो east flowing rivers है वो कहाँ पे जाके मिलते हैं, ये वाले पार्ट पे ही जाके मिलते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है। See, many east flowing rivers using from the western and eastern Ghats meet this coast, and because of the gentle slope of land, river flows at larger velocity and deposits the sediments brought with them as a coast, and as a result delta यहाँ पे बनता है। हम लोग ने देखा सुंदरबन यहाँ पे ही बना है ना, ये वाले पार्ट में सुंदरबन। तो यहाँ पे वही बताया पहले, ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न, वो अरेबियन सी है, इसकी विड्थ कम है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इतने रिवर फ्लोइंग नहीं है। एंड अगर यहाँ पे जो रिवर फ्लोइंग है तो वो भी कितने हैं, शॉर्ट एंड स्टीप है। बट इफ यू सी टुवर्ड्स द ईस्टर्न, ये रीजन का जो विड्थ है ये बड़ा ही थिक है। वाई? बिकॉज यहाँ पे यू हैव दिस रीजन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ रिवर। एंड यहाँ पे ऐसी बहुत सारी रिवर्स है जिनकी फ्लो हाई है विथ हाई वेलोसिटी, एंड दैट इज वाई यहाँ पे डेल्टास फॉर्म हुए हैं। एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ईस्चुरीज फॉर्म हुआ था एंड डेल्टा फॉर्म नहीं हुआ था। इसकी विथ लेस है, इसकी विथ कंपैरेटिवली यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इट्स विथ इज ग्रेटर देन द वेस्टर्न कोस्ट। इज इट क्लियर? समझा? डिड यू अंडरस्टूड द कोस्टल प्लेन Yes, miss. एंटायर? Yes, miss. ओके, चल। सो द प्रॉब्लम इज अपने टेक्स्ट बुक में ना बच्चा ऐसा डायग्राम नहीं दिया है, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझने को थोड़ा डिफिकल्ट होता है। Yeah, because they have not given much diagram, but if you learn it diagram wise, you will understand the entire thing. So we have learned three physiography till now: the Himalayas, then we have seen the Peninsula region, and now we have seen the coastal region. तो अब हम देखेंगे, सॉरी नॉट द पेनिनसुलर रीजन, द डेक्कन रीजन, फिर हम लोग ने कोस्टल देखा, एंड नाउ वी विल सी द पेनिनसुलर रीजन। अगर आप इसमें देखो तो पेनिनसुलर रीजन, ये जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट है, ये वो अब हम पढ़ेंगे। हम लोग ने ये वाला पार्ट देखा हिमालयस, हम लोग ने ये वाला पार्ट देखा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। अब हम ये पढ़ेंगे विच इज डेक्कन प्लेटू, या तो पेनिनसुला, इसे डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं, सी इसे डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं, इंडियन प्लेटू, या तो फिर उसे पेनिनसुला भी बोलते हैं। See, the area lying to the south of North Indian plains and tapering towards the Indian Ocean is called Peninsula. The peninsula कौन सा है? The area lying to the south of North Indian plains. तो यहाँ पे जो North Indian plains है उसके south में ये lie करता है. That is why they have said that it lies towards the North Indian plains and tapering towards the Indian Ocean. And कहाँ तक ये जाता है? It goes towards the इंडियन ओशन। मतलब क्या, ये वाला पार्ट बेसिकली यहाँ तक पूरा आता है ना, दैट इज व्हाई दे हैड सेड इट लाइज टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, कहाँ से जाता है? इट इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टेपर्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। तो ये पूरा पार्ट हमारा बन जाता है पेनिनसुला, या तो हम इसे डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्यूज एंड हिल रेंजेस। तो अगर आप देखो इसी के अंदर यू हैव मेनी प्लेटूज, यू हैव मालवा प्लेटू, यू हैव मारवाड़ प्लेटू, यू हैव मेवाड़ प्लेटू, यू हैव महाराष्ट्र प्लेटू। तो इसी हमारे उसके अंदर ही बहुत सारे, यू हैव छोटा नागपुर प्लेटू, यू हैव रांची प्लेटू। तो एक ही हमारा जो मेन प्लेटू है उसके अंदर भी इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेटू एंड हिल रेंजेस, के बड़े हिल्स भी है, एंड इसी में वी हैव मेनी प्लेटूज एज वेल। The Aravali in the north are the oldest four mountain hills, and you have Aravali ranges. सी बच्चा, यहाँ पे आप देखो तो जो अरावली रेंजेस है ये वाला,
ये देखो अरावली रेंज यहाँ पे दिखा, दिख रहा है Yes, क्या miss. अरावली रेंज यहाँ पे, या टुवर्ड्स द वेस्ट, एकदम वेस्ट के यहाँ पे गांधीनगर के ये साइड, ये देखो यहाँ पे यू हैव अरावली रेंजेस। तो क्या बताया गया है यहाँ पे, that it consists of many plateau and hill ranges. The Aravallis in the north are the oldest fold mountains here, के ये जो अरावली है towards the north, it is the oldest fold mountain range के सबसे जुना है. It includes a series of plateau bordering the plains. Then you have Vindhyas, then you have Satpura range in the central part. तो यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट में you have Vindhya range, ये वाले पार्ट में you have Satpura range. Are you guys getting it? ये Yes. देखो यहाँ Yes. पे विंध्या एंड सतपुड़ा, तो वही यहाँ पे बताया गया है. it has Vindhya ranges, it have Satpura ranges central part में, and the hilly regions of western and eastern घाट्स के ये जो हमारा western and eastern घाट्स हमने पढ़ा, ये वाला पार्ट उसका hilly region, थोड़ा सा north वाला पार्ट भी डेक्कन में lie करता है. बस इतना ही है अबाउट द पेनिनसुला. ओके, सी यहाँ पे इफ यू सी आपके पेनिनसुला के बारे में, या हिमालयस हमने पढ़ लिया, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पढ़ लिया. देखो पेनिनसुला के बारे में इतना ही चीज बताया गया है, शॉर्ट एंड स्वीट. समझा आपको पूरा पेनिनसुला? पहले तो क्या था, Yes, नॉर्थ miss. इंडियन प्लेन्स के साउथ में लाई करता है एंड इंडियन ओशन के बीच में. फिर यू हैव इट कंसिस्ट ऑफ मेनी हिल एंड प्लेट्यू रेंजेस. कौन कौन से प्लेट्यू है वो लिख लेने के. फिर कौन से रेंजेस है, प्लेट्यू तो हमने लिख लिया, यहाँ पे प्लेट्यूज दिख रहा है. वी हैव मालवा, मेवा, डेक्कन, महाराष्ट्र, हजारीबाग, छोटा, रांची, ये सारा प्लेटू आ जाएगा. एंड कौन से हिल रेंजेस है, तो हिल रेंजेस हम लोग ने देखा, यू हैव सतपुड़ा रेंजेस, यू हैव विंध्या रेंज, यू हैव अरावली रेंजेस. तो वो सारे रेंजेस लिख लेने के. इज इट क्लियर? So this entire Yes, miss. portion comes in your peninsula region. Now we will see the last physiography of India, which is the island groups. Island groups मतलब कौन सा आ जाता है बच्चा, ये वाला पार्ट आ जाता है आपके, जो ये जो पार्ट लाता है ना, यहाँ पे अरेबियन सी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल. तो ये जो दो ओशंस है वही हमारे आइलैंड ग्रुप्स माने जाते हैं. सी, एंड यहाँ पे यू हैव नीचे इंडियन ओशन, तो यहाँ पे यू हैव अरेबियन सी. ये देखो यहाँ पे डायग्राम में मैंने बताया, यहाँ पे साउथ में यू हैव सॉरी टुवर्ड्स द वेस्ट यू हैव अरेबियन सी, साउथ में यू हैव इंडियन ओशन, एंड देन टुवर्ड्स द ईस्ट यू हैव बे ऑफ बंगाल. सो इंडिया हैज many small and large islands along the coast. के ये हमारा जो कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, along the coast you have many small islands. जैसे you have लक्षद्वीप, यहाँ पे you have अंडमान एंड निकोबार. तो इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ मेन आइलैंड. जो हमारा मेन आइलैंड है उसके कोस्ट में भी हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है. these are included in the coastal island group. और ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं, कोस्टल आइलैंड ग्रुप्स में. besides India has two large group of islands, one each in the Arabian Sea and one in the Bay of Bengal. कि ये जो दो हमारे मेन आइलैंड है उसके बारे में बताया. We have Arabian Sea, you have Bay of Bengal. The island in the Arabian Sea are known as Lakshadweep, right? के आइलैंड जो यहाँ पे अरेबियन सी में है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लक्षद्वीप भी बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आर अटॉल. अटॉल मतलब क्या, एक रिंग शेप्ड आइलैंड होते हैं. इफ यू सी ऐसे शेप के होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आर अटॉल, दैट इज रिंग शेप आइलैंड. दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई, राइट? हम लोग ने वेस्टर्न कोस्ट पढ़ते वक्त भी देखा कि यहाँ पे इतना रिवर फ्लोइंग रीजन्स नहीं है, एंड यहाँ के रिवर कैसे है, शॉर्ट एंड स्टीप है. तो यहाँ पे भी वही बताया है कि दे आर वेरी स्मॉल इन एक्सटेंट, कि उनकी लेंथ भी इतनी नहीं है, एंड दैट दे आर नॉट वेरी हाई. समझा? वेस्ट वाले पार्ट का अरेबियन सी देखा, उसके अंदर जो आइलैंड आता है उसे लक्षद्वीप कहते हैं. एंड वो कैसे है, दे आर अटोल, दे आर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट, एंड दे आर नॉट वेरी हाई. इज इट क्लियर? Yes, miss. Yes, Okay. miss. Now
Now we will see the eastern part. Eastern part क्या है? The island in the Bay of Bengal are called as Andaman Nicobar. जैसे अरेबियन सी के आइलैंड को लक्षद्वीप बोलते हैं, वैसे ही बे ऑफ बंगाल के अंदर जो आइलैंड आता है उसे हम क्या बोलते हैं? We call it as Andaman and Nicobar Island. The island in the Bay of Bengal are called Andaman and Nicobar Island. Island in the Andaman group are mainly volcanic islands because हम लोग ने देखा था यहाँ पे बहुत सारी river flowings थी, तो यहाँ के जो islands है ना, they are volcanic islands. They are large with hills in the interior parts and includes an island called Barren Island which has only volcano active in India. And यहाँ पे if you see you also have Barren Island जो एक active volcano region वाले एरिया में लाई करता है. देर आर अटॉल्स इन द निकोबार ग्रुप टू. अटॉल्स क्या था? यहाँ पे हम लोग ने देखा इट इज अ रिंग शेप्ड आइलैंड. तो यहाँ पे तो सारे ही रिंग शेप्ड आइलैंड है, बट यहाँ पे निकोबार में भी एक ऐसा आइलैंड है जिसका अटॉल फॉर्म हुआ है, मीन्स दे हैव अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर? Yes, Yes, miss. miss. ओके.